Okay students, in this lecture we will study about the mechanism of nucleophilic substitution reaction of alkyl halide. ठीक है, as we know what is a substitution reaction of the alkyl halide. If we are having Rx, ठीक है, if you are having the alkyl halide and you add some nucleophile on it, then it will change into RNU plus X negative. Okay, so Nu is the nucleophile, X negative is named as the leaving group क्योंकि ये इसको छोड़ के जा रहा है, so it is named as the leaving group, है ना. What kind of the reaction take place in this? Like if you want ROH, अगर आपको अल्कोहल बनाना है, so our nucleophile will be OH negative ion. We have to add NaOH or aqueous KOH. If you want to make ether ROR dash, then nucleophile will be OR dash negative. If you want to make cyanide, if you want to make R cyanide, then what is your nucleophile? It will be CN negative ion. You want to make RH, that is alkane, then H negative will be the nucleophile. You want to make RNO2 या RONO, that is alkyl nitrite, then your nucleophile will be NO2 negative. ठीक है. So what is a substitution reaction in which one group is substituted by the other group? X को हटाना है, OH को लगाना है, OR को लगाना है, साइनाइड को लगाना है, तो ये सभी हमारे पास में substitution reaction बनती है. Now this substitution reaction will take place in actually by the two mechanism. ये two mechanism को follow करता है. One is named as SN1 mechanism and second is named as the SN2 mechanism. ठीक है, तो we are having the two kind of mechanism, SN1 and SN2. So what is the meaning of this S and N? S का meaning है substitution reaction and N का मीनिंग है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन? इट इज यूनिमोलिकुलर. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू? इट इज बाइमोलिकुलर रिएक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज बाइमोलिकुलर एंड यूनिमोलिकुलर वन? लाइक यू नो, इन दिस रिएक्शन द रेट is directly proportional to, if the rate is directly proportional to concentration of this alkyl halide as well as concentration of nucleophile, then we say it is a second order reaction and then it is named as SN2. इसका मैकेनिज्म जो होगा वो क्या होएगा? SN2 बनेगा. But if rate is directly proportional to only Rx, only alkyl halide and does not depend on the nucleophile, then it will be of the first order. तब ये बनेगा first order का. ठीक है ना. तो we are having the two type of mechanism, SN1 and SN2. SN1 में क्या होने वाला है? Rate is directly proportional to only alkyl halide and it will be of the first order, so it will be named as substitution nucleophilic and unimolecular. And in the second side, if rate is directly proportional to alkyl halide as well as the nucleophile, then it will be of the second order type. तो अब देखते हैं सबसे पहले कि SN2 में हमारे पास में क्या बनेगा. In SN2, rate is directly proportional to alkyl halide as well as the nucleophile, and secondly, very important, it take place only in one step. How it take place? See the mechanism. We are having the carbon. There are the three groups involved on it. One is the X. Okay. Now we are having the nucleophile. This nucleophile want the positive charge. It will attack on this carbon and it will attack from the back side of the halide ion. ठीक है, बैक साइड से अटैक करेगा. कहाँ अटैक करेगा? ऑन दी कार्बन, बिकॉज कार्बन इज हैविंग सम पॉजिटिव चार्ज ऑन इट. ओके. नाउ बीच में क्या होगा? कार्बन है एंड न्यूक्लियोफाइल इसके नियर बाई आना स्टार्ट होगा, नया बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा एंड दिस हैलोजन हैज टू बी रिमूव्ड. ये हैलोजन जो है बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट करेगा.
देयर मे बी वन क्वेश्चन कि वाई कार्बन इज मेकिंग द 5 बॉन्ड, इन एक्चुअली इट इज नॉट द 5 बॉन्ड, ये पूरे 5 बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसके नियर बाई आना स्टार्ट हुआ है और X जो है इससे दूर जा रहा है। दिस स्टेट इज नेम्ड एज ए ट्रांजिशन स्टेट, दिस स्टेट इज नेम्ड एज द ट्रांजिशन स्टेट, इसको ट्रांजिशन स्टेट आप लोग कहेंगे। एंड लेटर ऑन what will happen, this X will be removed and nucleophile will fully attach on it. I am writing on this side. Okay, what will happen, देखिए कार्बन है, न्यूक्लियोफाइल अब अटैच हो चुका है एंड ये 3 हमारे पास एज इट इज, प्लस में X नेगेटिव विल बी फॉर्म्ड इन इट, प्लस में X नेगेटिव इसके अंदर बन जाएगा। ओके, सी अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये मेरे पास में एल्काइल हैलाइड है, ये ब्लैक वाला हैलाइड है एंड दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, इट विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड ऑन दिस कार्बन एटम, देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ द बॉन्ड। ये 5 बॉन्ड है, इसके अंदर ये न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक होना स्टार्ट हुआ है और ये हैलोजन जो है वो इससे दूर हटना स्टार्ट हुआ। इट इज द इंटरमीडिएट स्टेट आई विल से, सॉरी इट इज द ट्रांजिशन स्टेट आई विल से, एंड लेटर ऑन व्हाट विल हैपन, लेटर ऑन द प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, ये हमारे पास लास्ट में प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये लास्ट में हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। रिएक्टेंट क्या है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये इसमें हैलोजन है और लास्ट में क्या बनेगा, लास्ट में ये इस तरह से बन जाएगा। ओके, सो ये SN2 रिएक्शन हमारे पास टेक प्लेस। नाउ सी अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री। देखिए ये हमारे पास ऐसे ग्रुप था और लास्ट में बना कैसे, इस तरह का ग्रुप हमारे पास ये बन के आया। तो इट इज द मिरर इमेज ऑफ द फर्स्ट वन, ये फर्स्ट वाले की मिरर इमेज बन के आ रही है, मतलब इसके अंदर इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन विल टेक प्लेस। स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसमें इन्वर्जन हमारे पास में बन जाएगा। सो आई विल से अकॉर्डिंग टू स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वर्जन विल टेक प्लेस इन दिस, इसके अंदर इन्वर्जन हो जाएगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। ठीक है, फॉर द SN2 व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। रिमेंबर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में क्या पॉइंट है कि हमारे पास अगर यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन इट, बट इफ वी आर हैविंग द मिथाइल ग्रुप, वी आर हैविंग द 3 मिथाइल ग्रुप ऑन इट, देन इट विल बिकम टर्सरी ग्रुप। ये कैसा बन जाएगा, टर्सरी एल्काइल हैलाइड बन जाएगा और न्यूक्लियोफाइल then will not able to attack on this. Why it will not able to attack on this? Due to this crowdness of the 3 methyl group. ये 3 methyl group मिलकर के crowdness बना देंगे जिससे न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स अगर हमारे पास ये मिथाइल हैलाइड है तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपैरिजन टू प्राइमरी हैलाइड। If it is the secondary halide then order of reactivity again will become less, और अगर ये tertiary halide है तो order of reactivity और भी कम हो जाएगी। क्यों होगी? I will say due to the steric hindrance। क्यों हो रहा है ऐसा? That is due to the steric hindrance, that is the crowdness, because if crowdness occur on this carbon atom then nucleophile will not able to attack on this carbon. So if it is the methyl halide then it is very reactive, if it is the primary then less reactive, in the secondary somewhat less reactive, और tertiary में ये मान के चलिए कि SN2 mechanism will not take place. Okay, in the SN1 mechanism Rx again react with the nucleophile to change RNU plus X negative, and in this rate is directly proportional to only alkyl halide. ठीक है, and secondly it take place in 2 steps, it take place in 2 step। इसका जो मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप में होने वाला है। क्या स्टेप्स हैं? वन इज द फर्स्ट स्टेप, आई कैन से इट इज फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायन। सबसे पहले क्या होगा, कार्बोकैटायन इसमें बनेगा। एंड कैसे बनेगा कार्बोकैटायन? देखिए यू आर हैविंग दी एल्काइल हैलाइड, कार्बन है, ये हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं, मे बी एल्काइल मे बी हाइड्रोजन, और इसके साथ ही ये हैलाइड जुड़ा हुआ है। स्टेप नंबर 1 में क्या हो रहा है,
ये स्लो स्टेप है, सो इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन X नेगेटिव हट जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास कार्बोकेटायन प्लस में X नेगेटिव, ठीक है ना। कार्बोकेटायन कैसा होगा, इट विल बी प्लेनर, यू नो कार्बोकेटायन कैसा होता है, ये हमारे पास प्लेनर है। और आपको क्या पता है कार्बोकेटायन के बारे में, यू नो द स्टेबिलिटी ऑर्डर, कि टर्सरी ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपैरिजन टू सेकेंडरी, एज कंपैरिजन टू प्राइमरी। इट मींस अगर ये टर्सरी ग्रुप हुआ, ठीक है ना, तो ये टर्सरी कार्बोकेटायन बनेगा, देन इट विल इजीली बी फॉर्म्ड बिकॉज टर्सरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि तो इसका मतलब ये हमारे पास जल्दी से कार्बोकेटायन बना देगा। देन स्टेप नंबर 2, सेकंड स्टेप में क्या होने वाला है, अब ये हमारे पास कार्बोकेटायन बन चुका है विच इज ए प्लेनर वन, एंड जब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, फ्रॉम वेयर इट विल अटैक, इट कैन अटैक फ्रॉम द टू साइड। ये फ्रंटल अटैक भी हो सकता है, बैक साइड अटैक भी हो सकता है। तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास में 2 टाइप के प्रोडक्ट बन के आएंगे, वन इज लाइक दिस एंड प्लस सेकेंड विल बी लाइक दिस। चलिए इसको डायग्राम से हम इसको एक बार मॉडल के थ्रू समझने की ट्राई करते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारे पास है एल्काइल हैलाइड। सबसे पहले इसमें क्या होगा, ये जो हैलोजन है ये इसमें से ब्रेक हो जाएगा, ये हैलोजन हमारे पास में यहाँ से हट जाएगा, स्टेप नंबर 1, एंड इट विल चेंज इनटू दिस कार्बोकेटायन प्लेनर 1। ये एक प्लेन आपको विजिबल हो रहा है। अब इसके बाद हमारे पास हैलोजन ने न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, एंड इट कैन अटैक फ्रॉम द टू साइड, इट कैन अटैक फ्रॉम दिस साइड, 50% चांसेस है कि ये यहाँ से अटैक करे, एंड 50% चांसेस है कि ये यहाँ से भी अटैक कर सकता है, बिकॉज ये प्लेन में है तो ये यहाँ से भी अटैक कर सकता है, और 50% चांसेस है कि यहाँ से अटैक करे। तो अगर ये ऐसे ऊपर से अटैक करेगा तो हमारे पास किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ओके। और अगर हमारे पास ये बैक साइड से अटैक करता है, यहाँ नीचे से अटैक करेगा, देन वी विल गेट दी अदर काइंड ऑफ द प्रोडक्ट विच इज लाइक दिस। ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। तो इसमें मैंने देखिए रेड वाला ऊपर से दिखाया, इसका मतलब ऊपर से अटैक किया था उसने, और इसमें मैंने रेड वाला क्या है नीचे दिखाया है, इसका मतलब इसने नीचे से उस पर कार्बोकेटायन पे अटैक किया है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेंगे, हमारे पास 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, एक ये बन गया प्रोडक्ट और एक हमारे पास में ये वाला प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। अब इसके अंदर तो मैंने तीनों ग्रीन दिखाए हैं बिकॉज ये कायरल नहीं है, इसलिए आपको लगेगा दोनों एक जैसी स्ट्रक्चर है, बट इन एक्चुअली दीज आर मिरर इमेज टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। एक अगर इसमें डेक्स्ट्रो बनेगा तो दूसरा इसमें ऑटोमेटिकली लीवो बनेगा। तो अगर ऐसा हो जाए कि 50% डेक्स्ट्रो बन रहा है, 50% लीवो प्रोडक्ट बन रहा है, तो इट मीन्स रेसिमाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इन इट। इसका मतलब इसके अंदर रेसिमाइजेशन हुआ है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इट। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या बनेगी, आई विल से स्टीरियोकेमिस्ट्री में मैं क्या कहूंगा कि हमारे पास बना है प्लेनर कार्बोकेटायन। ये कैसा बना, प्लेनर कार्बोकेटायन। नाउ दिस न्यूक्लियोफाइल हैज द टेंडेंसी टू अटैक फ्रॉम दिस साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड। इट हैज द 50-50% चांसेस, so it will give 2 kind of the product which are 50% to each other। ये दोनों क्या बनेंगे, 50% डेक्स्ट्रो बनाएंगे एंड 50% लीवो बनाएंगे, एंड इट इज नेम्ड एज दी रेसिमाइजेशन। तो इसका मतलब हमें रेसिमिक मिक्सचर इसके अंदर मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर हमें इसके अंदर लास्ट में मिल जाएगा। अगर SN2 है तो क्या मिला था, इन्वर्जन टेक प्लेस हो गई थी, बट अगर SN1 है तो क्या हुआ, वी आर गेटिंग द रेसिमिक मिक्सचर। अब इसके बाद पॉइंट आता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इट। इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या बनेगी, देखिए अगर हमारे पास मैंने बताया था यहाँ पर तीनों एल्काइल ग्रुप हैं, तो ये कैसा हो गया, टर्सरी हो गया। अगर टर्सरी हो गया तो कार्बोकेटायन कैसा बनेगा, टर्सरी बनेगा। अगर टर्सरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है वी नो, तो इट मीन्स ये काम जल्दी हो जाएगा, और अगर जल्दी हो जाएगा तो ये जल्दी बनना चाहेगा, यानी ये स्लो स्टेप जो है थोड़ा फास्ट हो जाएगा। यानी अगर टर्सरी हमारे पास एल्काइल हैलाइड है तो ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो SN1 से टेक प्लेस होगा। सेकेंडरी में चांसेस हैं कि SN1 से भी हो सकता है, SN2 से भी हो सकता है, लेकिन प्राइमरी के अंदर
नो डाउट SN1 से होने की टेंडेंसी बहुत कम है, SN2 से वो मैकेनिज्म टेक प्लेस होगा, और अगर मिथाइल हैलाइड है तो और भी कम टेंडेंसी है कि ये मैकेनिज्म SN1 को फॉलो करे, फिर वो SN2 को ही फॉलो करेगा. नाउ सी व्हाट इज द डिफरेंस इन SN1 एज वेल एज SN2 रिएक्शन. लेट्स सी, in the SN2 only this reaction mechanism will take place in one step, but in the SN2 it take place in the two step. ये two step में काम होता है. फर्स्ट स्टेप जो है that is the rate determining slow step and second is the fast step. in the SN1 SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, SN1 में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड. इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड. इन द SN2 rate is directly proportional to alkyl halide as well as the nucleophile concentration, but in this rate is directly proportional to only the Rx concentration. Number 4, what is the reactivity order of the SN2? Tertiary is greater than secondary, greater than primary, greater than methyl halide. क्यों है ऐसा? Due to the steric hindrance. Crowdness की वजह से ऐसा है, due to steric hindrance. But in the SN1, what is the reactivity order? Methyl halide has very less reactivity, primary has more, secondary has more, and tertiary has maximum. Reason being that stability of carbocation. Stability of carbocation. ठीक है. And last one, what is the inversion of the configuration is the stereochemistry in the SN2, but in the SN1 racemization will take place. Racemization will take place, यानी 50% dextro will be formed and 50% levo will be formed in it. चलिए, अब हमने लास्ट में देखना है इस टॉपिक के बारे में कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे आपने अटेम्प्ट करना है. ओके, सी दिस क्वेश्चन. इसमें आपने बताना है कि SN2 किस में फास्ट होगा. इन एक्चुअली इट इज द सेकेंडरी बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच्ड विद द 2 फर्दर कार्बन and it is the primary one. ये primary है. So now in the SN2 you know कि secondary में SN2 कम होगा and primary में SN2 ज़्यादा होगा. So what will be the order? Order will be like this. SN2 primary में ज़्यादा होगा, SN2 secondary में कम होगा. And what about the SN1? अगर SN1 की बात करें तो उसमें reverse order बनेगा. In the SN1 order will be reverse. ठीक है. चलिए, see this. Write the reactivity order of SN1 and SN2 for the 4 isomeric bromobutane. We are having the 4 isomer of the bromobutane. One is this, second, third, and fourth. ठीक है ना. There are the 4 isomeric bromobutane. Now see this, it is the primary one, it is the secondary, it is the primary, and it is the tertiary. So as you know, for the SN2 order, what is the order of reactivity? Tertiary is less reactive than secondary, then primary, and then methyl halide. Okay, so there is no any problem to say कि D में सबसे कम बनेगा, secondary B में थोड़ा ज़्यादा बनेगा. अब प्रॉब्लम आ गई ए और सी में, बिकॉज बोथ आर ऑफ द प्राइमरी नेचर. ठीक है. अब इसमें देखिए क्राउडनेस किस में ज़्यादा है. ठीक है, दोनों प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, बट आपने क्या देखना है कि क्राउडनेस किस में ज़्यादा है. एंड यू कैन ऑब्जर्व कि इसमें थोड़ी भीड़ ज़्यादा लग रही है, इसमें क्राउडनेस थोड़ी ज़्यादा लग रही है. सो इट मीन्स हमारे पास में सी जो है, सी में थोड़ा कम होगा और ए में सबसे ज़्यादा SN2 ऑर्डर काम करेगा. SN2 मैकेनिज्म ए में सबसे ज़्यादा काम करेगा, सी में थोड़ा कम करेगा, बी में और भी कम करेगा और डी में और भी कम करेगा. तो ये ऑर्डर किसका हो गया? इट इज़ फॉर द SN2 ऑर्डर. बट अगर आपने SN1 ऑर्डर लिखना है, सो इट विल बी द रिवर्स ऑफ द SN2. सो आई कैन से ए विल बी द लीस्ट हैविंग द टेंडेंसी फॉर द SN1, सी में थोड़ी ज़्यादा होगी, बी में और ज़्यादा, और डी में सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है टू शो SN2 SN1 नेचर. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने इसमें SN1 ऑर्डर को बताना है. ठीक है. तो फर्स्टली सी, ये कैसा है? प्राइमरी है. इट इज द सेकेंडरी वन बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच्ड विद द 2 कार्बन साइड्स.
अगेन इट इज द सेकेंडरी वन एंड इट इज द टर्सरी वन, ठीक है। तो अब आपने SN1 देखना है, यू नो द ऑर्डर। SN1 में प्राइमरी जो है वो लिस्ट होता है, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। सो A जो है वो लिस्ट बनेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एंड देयर इज द प्रॉब्लम इन द B एंड C बिकॉज बोथ आर ऑफ हैविंग द सेकेंडरी नेचर। टर्सरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर SN1 सबसे ज्यादा बनेगा, D में सबसे ज्यादा बनेगा। प्रॉब्लम इज B एंड C। अब आपने देखना क्या है, यू हैव टू सी कि किसके अंदर कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा। अगर SN1 है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है, SN2 है तो आपने क्या देखना है, स्टीरिक हिंड्रेंस देखना है। बट ये SN1 की बात कर रहा हूं तो आपने देखना है कार्बोकैटायन किसमें ज्यादा स्टेबल बनेगा। अब कार्बोकैटायन स्टेबल किसमें बनेगा, इसके अंदर देखिए, अगर मैं ये बना दूं, यहां से मैं Br हटा दूं, ये वाला कार्बोकैटायन है और एक हमारे पास ये कार्बोकैटायन है, तो इसके अंदर रेजोनेंस ज्यादा होगी क्योंकि बेंजीन ग्रुप है और इसमें रेजोनेंस कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास C जो है, C में जो है वो थोड़ा सा कम SN1 बनेगा और B में SN1 थोड़ा ज्यादा बनेगा। नो डाउट टर्सरी में सबसे ज्यादा ये बनेगा। अगर मुझे SN2 ऑर्डर लिखना है तो क्या करूंगा, बिल्कुल इसका रिवर्स लिख लूंगा। SN2 जब लिखते हैं तो क्या देखना है, क्राउडनेस देखनी है। आप देखिए क्राउडनेस सबसे ज्यादा किस में है, इसमें क्राउडनेस ज्यादा है, तो D में सबसे कम टेंडेंसी होगी SN2 दिखाने की और A में सबसे ज्यादा टेंडेंसी होगी SN1 दिखाने की। नाउ वी आर हैविंग द B एंड द C। आप देखिए क्राउडनेस किस में ज्यादा है, क्राउडनेस इसमें ज्यादा है, इसमें क्राउडनेस कम है। जिसमें क्राउडनेस कम है उसमें SN2 ज्यादा होगा और B में SN2 और भी कम बनेगा। तो ये इसका SN1 एंड SN2 ऑर्डर हम कह सकते हैं। सी दिस लास्ट क्वेश्चन, ये 4 हमारे पास आइसोमर गिवन है, आपने SN2 ऑर्डर लिखना है, ठीक है। ऑल आर दी प्राइमरी, देखिए ये प्राइमरी है, ये भी टर्सरी लग रहा है, बट हमने ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन के रिगार्डिंग बताना है, ये प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। अब क्या करें भाई, चारों ही प्राइमरी हो गए। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि जिसमें क्राउडनेस कम है उसमें SN2 ज्यादा होगा। किसमें क्राउडनेस कम लग रही है, इसके अंदर क्राउडनेस सबसे कम है, तो A हमारे पास सबसे पहले आएगा। नंबर 2, D में आप देखिए D और C बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन D में ये मिथाइल ग्रुप दूर है कार्बन उससे, उस कार्बन से जिस पे ब्रोमीन अटैच है, तो इसका मतलब हमारे पास D आएगा। फिर इसके बाद इसमें थोड़ी क्राउडनेस कम है, जिसमें क्राउडनेस कम होती है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा SN2 के रिगार्डिंग D, और D के बाद बनेगा C और सबसे कम रिएक्टिव होगा हमारे पास B, क्योंकि इसमें क्राउडनेस सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपने अब बहुत अच्छे से SN1 SN2 कर लिया है, होपफुली अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा।